वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, चंगे होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे। माँ बाप पे तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, बेल आइकन को जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ठीक है। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है फाइनली गोइंग टू इंडिया, कम ट्रैवल विद मी, टर्की टू इंडिया व्लॉग अप्रैल 2022। सो स्टार्ट करते हैं। Okay, hi, hello everyone. This is Gizem. Welcome to my channel. But you can call me Gizu. So I don't know you know it or not, but only 5 days left that I will be in India before my flight. Only 5 days left, and today is Sunday, 5 or 7 p.m. or something. I haven't checked. So I said, okay, let's get ready together, take my luggage together. This will be, and after that, these are my first vlogs in my channel. So I'm extremely excited. I don't know how to hold that camera, the lighting, where to show, where to look, but you will understand because, you know, I have no experience for vlogging. So yeah, let's go. Okay everyone, I will bring 2 big luggage. Totally I think 46 kg, but I will bring one only full, other one that I'm gonna buy things in India and I will bring to Turkey back. So I'm gonna show you like what kind of things I will bring. So as you know that India is so hot. Okay, this is girlish thing, guys. I have a big bag in here. What kind of things I have? Of course, my first thing. If you're going to India, definitely first thing you have to get is a sun cream. Definitely a sun cream. So what other things? Like deodorant because it's too hot, perfume, moisturizer, hair things, shampoo, that kind of things I have. I can buy these things in there also, but still I need my things. So as a girl, here's that I need. Alright. I will visit the trekking places. So I bring a pair of shoes for trekking. And as you know that India is so hot, I don't want to cover my food. So I will bring 2 like chapal or something like this. And also I think I can buy these things in India also. Yeah, I have those things. I will to put it in. So and I don't know, I have to show these things or not, but these are my shorts. While sleeping because it's too hot. I'm sure it will be too hot. And I have many gifts for my friend. As you know that I will stay in my friend's home, and after that while we travel we will stay in hotel. But first time I'm going, so in Turkish culture I'm sure it's same in Indian culture also. If you visit someone's house for the first time, you have to get gifts. So I bought so much gifts. This is mandatory. I have to. If I go without anything, it's so shameful. It's so rude. It's not good.
It's not, you know, welcoming. It's bad. So if you go somewhere for the first time, you have to get gift. I have so much shirts, guys. So much shirts and my earrings and all. But I'm gonna buy so much. This is jhumka, right? I'm gonna buy so much jhumka like this. So that's why I brought only a few. I have that much small bag that while traveling I don't want to carry a big bag, so I can put my phone, my passport, my money and other things inside it. It will be safe with me. That kind of thing. I have so many dresses, the long dresses. Incredibly, I brought so much dresses. And what I have, I think they are not in here. Yeah, just couple of copy, couple of t-shirt, couple of dress. I won't take so much things with me. Like I said, I want to buy things in India. So I don't want my luggage so full. So yeah, it's like this. Can you believe, if you follow me from a long time, I always said that it's my dream. It's my dream to go to India. So I will shoot my every second in there, in plane, at the airport, in Delhi or another states. I will keep shooting videos and I will let you know on Instagram also. So don't forget to follow me on Instagram because it's easy to go live on Insta. So yeah, it's like this. I will be in India for 16 days. So please let me know all the foods, all the places, everything that you want me to taste, you want me to shoot. So it's like, I'm so overexcited. And by the way, what is my problem? Currently, I have gained so much fat. I'm, I think, 67 now. In India, I can be 80, 100 kg, I don't know, let's see. But I know I won't stop myself to not eat. I will just eat, I will shoot all that videos, and when I come back to Turkey, I will be in diet again. But I won't ruin, you know, I won't ruin myself. Like, okay, don't eat, you will gain weight. No. So it is like this. There's so many things in here, and I will take with myself so many eatable also as a gift. One luggage will be empty when I go to India. So I'm planning to buy so many t-shirts with Lord Shiva, so many Hindi or other languages, like quotes or something on the t-shirts, so many earrings, traditional dresses. If I can bring the snacks and all, I will bring. You will be seeing me with so many street food vlogs, trying Indian snacks, trekking, so many temples. I will go to places as much as I can because my time is very limited. But let's see. So this is just the information that I'm telling you. So be with me. Please press that bell icon so you will get to know where I am, what I'm doing and all. And if you don't follow me yet on Instagram, please follow me on the Instagram also. So I'm a little bit amateur for that vlogs. I don't know how to hold, what to shoot, where to show, but
I'm gonna learn. Yeah. Okay, it's just like this. Okay. Like I said, please comment below every suggestion you want to give me. Please comment below. So I'll see you in India. Jai Hind. I'll see you in India. जी जनाब, अच्छा, सो एक्साइटेड। सो एक्साइटेड। और मैं किसी भी एंगल से 67 kg का नहीं मान सकती इनको, मैं तो वहीं शॉक्ड हो गई हूँ। दूसरी बात ये, जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी इस व्लॉग की, इस टाइप का व्लॉग नहीं देखा था हमने। हमेशा व्लॉग वो देखे थे कि जी इंडिया ट्रैवल कर रही हैं, जा रही हैं, एयरपोर्ट की शूट है और वहाँ पे पहुँचने के बाद कहाँ कहाँ गए, कौन कौन से सिटीज़ गए, ये सब था। लेकिन इस व्लॉग की सबसे ख़ास बात ये है कि पैकिंग की है, क्या Starting लिया vlog. है, कितनी एक्साइटमेंट है, कितना पता है, कितना नहीं पता है, कितना जानना चाहती हैं। तो ये चीज़ बहुत यूनिक और डिफरेंट लगे। अच्छा, जज्बात बहुत प्योर लगे, खुशी जो चेहरे से दिख रही थी, छलक रही थी, उसका एक अलग ही मज़ा लग रहा था मुझे देखकर कि वाकई ऐसा लग रहा था काफ़ी दिनों से इनकी काविशें रही हैं कि हम किसी तरह मतलब अब जाके इनका प्लान बने, जाऊँ, लेकिन जाना नहीं हो पा रहा था। और इस बार इनका फुल्ली फाइनली वाला प्लान बन चुका है, जाना हो रहा है, विजिट कर रही हैं इंडिया। शॉपिंग कर ली इन्होंने। अच्छा, शॉपिंग कर ली। दूसरी बात ये है, एक तो शॉपिंग अभी भी बहुत ज़्यादा कर ली। आप देखें, थोड़ी सी लड़कियों की नफ्सियात देखें। और वहाँ जाने के बाद भी ट्रेडिशनल ड्रेस वो तो वहाँ के लेने ना। हाँ, इयररिंग्स भी लेने हैं मुझे, ड्रेसेस भी लेनी है मुझे, फूड स्ट्रीट्स पे भी जाके मुझे टेस्ट करना है। और आप लोग भी मुझे सजेस्ट करो और मुझे बताओ कि कौन कौन सी जगहें बहुत मशहूर हैं, वहाँ मैं विज़िट करूँ, कौन कौन सी फूड स्ट्रीट अच्छी है, फूड्स अच्छा है, वो मैं खाऊँ, वो मैं टेस्ट करूँ। अच्छा, शूट करना बिल्कुल नहीं आता, फर्स्ट व्लॉग है, उन्होंने बताया मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन उन्होंने कहा आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगी। तो आप मुझे सपोर्ट करें, आप मुझे फॉलो करें, ताकि आपको पता चल सके कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। बिल्कुल बनी रहे आपकी नज़र। अच्छा, एक तो ये कि टर्की की जानिब से, टर्की के लोग अगर इंडिया आते हैं तो ये थोड़ा सा हमने बहुत कम देखा। यूरोप से देखा और कंट्रीज से देखा, लेकिन ये थोड़ा सा फर्स्ट टाइम हमारे आते होंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं आते होंगे। हाँ, तुर्किश लोग भी आते होंगे, लेकिन हमारी नज़र से नहीं गुजरा। ठीक है ना। और बहुत ही ज़्यादा मतलब चीज़ों की तैयारी फर्स्ट ही इस व्लॉग में इन्होंने यूँ समझ लो कि अपनी ऑडियंस को अपने बारे में एक इंट्रो वीडियो थी, मैं ये हूँ, मेरा मकसद ये है और मैं ये करने जा रही हूँ। अच्छा, अब ये नहीं पता किस जगह जाएंगी, किस जगह सबसे पहले जाएंगी, शायद मुंबई जाएं या दिल्ली जाएंगी मेरे ख्याल में। अच्छा, तुर्किश की इंग्लिश मैंने देखा थोड़ा सा एक्सेंट चेंज है, जाहिर है ना, क्योंकि टर्किश रुक कर ठहराव के साथ बोलते हैं। टर्किश अपनी एक लैंग्वेज है, जिस तरह हम इंग्लिश सीखते हैं उस तरह उन्हें भी इंग्लिश सीखनी पड़ती है। और उनके लिए इंग्लिश थोड़ी सी, अच्छा उनके साथ वो यूरोप टच है ना, तो उनकी जो है ना यूरोपी वाली ब्रिटिश इंग्लिश है, एक होती है अमेरिकन होती है, ब्रिटिश होती है, सही कह रहे हैं आप। इनकी ब्रिटिश इंग्लिश है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो देखी थी, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मतलब कि टर्की में हैं, जाते हैं और मतलब एक रिलेशनशिप समझ लें तो जाने का कह रहे थे। तो पूरी बात सुने ना। एक लड़के ने वहाँ बैठ के वीडियो बनाई, वहाँ पे उनका बिजनेस है, तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तानियों को बैंड किया जा रहा है, पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं टर्की वाली गवर्नमेंट, टर्की के लोग। रीज़न उसने बताया कि पाकिस्तानियों को वहाँ पे सख्ती से पेश आया जा रहा है। उसकी वजह ये है कि एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक लड़की जा रही है, शॉर्ट्स पहना हुआ उसने, पीछे से कोई शख्स पाकिस्तानी उसकी वीडियो बनाया जा रहा है। अच्छा, जब वीडियो बन गई, टिकटॉक, पाकिस्तानी वहाँ टिकटॉक बनाते हैं, वहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनके जो ड्रेसेस हैं वो यूरोपियन ड्रेसेस हैं, तो वहाँ की लड़कियों की वीडियोस बना के टिकटॉक पे अपलोड करके मिलियन व्यूज़ ला रहे हैं। यानी एक लड़की जा रही थी, अब बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है या वीडियो बना रहा है नहीं पता, ठीक है ना। अच्छा, वो वीडियो बना रहा है, उसकी जैसे वीडियो बनी एंड उसका अपने चेहरे की तरफ कर लिया, यूँ कर लिया, कुछ कर लिया। अच्छा, एक दो वीडियोस निकली तो फिर बाकायदा सर्च किया वहाँ की गवर्नमेंट ने, मिलियन वीडियोस निकली ऐसी पाकिस्तानियों की। कई वीडियोस निकली कि कॉलेज से लड़कियाँ निकल रही हैं तो उनकी बना दी, रेस्टोरेंट में बैठी हुई हैं तो उनकी बना दी। तो जब इन्हें पता चला कि ज़्यादातर अकाउंट्स पाकिस्तानी लड़कों के हैं और इस तरह से वो टिकटॉक पे वीडियोस बना के, तो उन्होंने, हाँ बात ये है कि वहाँ की आवाम और वहाँ की आवाम ने हैशटैग चलाना शुरू कर दिए पाकिस्तानी बैंड के, पाकिस्तानियों को यहाँ से बैंड किया जाए, ये हमारी माँ बहनों की इस तरह से वीडियो बना रहे हैं, हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, इन्होंने हमारे ये समझा हुआ है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार हम किसी भी देश में जाके झंडे क्यों गाड़ते हैं, हम अपनी जहनीत क्यों बताते हैं। टर्की का वहाँ पे भी नहीं मिलेगी हमें पन्ना,
बस यही सही है। यही सही है। तो ये है कि मैं कहता हूँ कि अपनी रिस्पेक्ट हम खुद बनाएं। किसी भी देश जाते हैं हम उन्हें अपने कंट्री को प्रेजेंट करते हैं कि हम ये हैं और हम इस तरह से रहने वाले लोग हैं, हम अपनी कौम का अच्छा इमेज पेश करें। ये क्या कर रहे हैं? अच्छा टिकटॉक, सिर्फ टिकटॉक के चक्कर में आप उनकी वीडियोस बना रहे हैं, गलत करे, गलत। अच्छा उनके ड्रेसेस आप कह रहे हैं ना ये और अच्छा मैंने देखा है, पता नहीं हमारे साथ बैड लक है क्या नहीं है, स्पेशली आप जो चीज़ कहते थे तो कुछ ना कुछ मसला हो जाता है। अब देखिए टर्की का थोड़े दिनों पहले ही जिक्र किया और अभी आप ये कह रहे हैं बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो रही है, स्ट्रिक्टली बिहेव किया जा रहा है। आर्जी तौर पे होगा, मुझे लगता है फिर थोड़ा सा सख्ती करेंगे तो फिर हो सकता है सेट हो जाए। लेकिन इमेज तो बन गई ना। लेकिन मुझे लगता है कि इनके व्लॉग्स इंशाल्लाह वायरल जाएंगे और आप लोग इन्हें भरपूर सपोर्ट करेंगे। हमारी भी कोशिश होगी, अगर आप लोग हमें कमेंट्स के ज़रिए बताएंगे कि इनकी नेक्स्ट वीडियोस पर हम वीडियो पे रिएक्शन देते रहें, इनके साथ जुड़े रहें, इनके हर व्लॉग पे हम रिएक्शन दें, इनके साथ जुड़े रहें। बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम इनके साथ सफ़र कर रहे हैं। तो ये आप लोग चाहेंगे तो हम रिएक्शन देंगे और हम चाहेंगे कि आप लोग इन्हें सपोर्ट करें, हम कोशिश करेंगे, आप लोग चाहेंगे तो हम इनके साथ जुड़े रहेंगे। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।